Welcome to lesson 7 of Introduction to Chemistry. In this lesson, we are going to look at the SLOs that we have already done in the previous video, in the previous lesson. There we had learned to find out the formula with the help of valencies. Now in this one, I'm going to do the opposite or the reverse of that. We are going to find out valencies with the help of formula. Okay, पहले हमने formula की help से valency निकाल दी. आज हम valency की help से फॉर्मूले की हेल्प से वैलेंसी निकालेंगे. सो किस तरह से क्वेश्चन आएगा? फाइंड वैलेंसी ऑफ ईच ऑफ द आयन इन द गिवन फार्मूला. यू आर गिवन विद सम फार्मूलाज and you have to find out in each what is the charge on each ion or what is the valency of each ion in the formula. So हर formula के अंदर there are two ions. One is a positive ion which is written first. ये पहला वाला ion होता है that is always positive, and the other ion which is written is always negative. So you have to find out the charge or the valency on both the ions. So before doing this, I would like to share with you some trick that can help you in finding the valency from the given compound. Okay, so we have already learned group 1 and we know that the charge on group 1 is +1, and we know that group 1 has elements from lithium to francium. So there is a mnemonic that I'm sharing with you which can help you to learn these names, all the elements with their names, their symbols, and they can also help you in remembering that group 1 elements has a charge of 1+. So what is the mnemonic for this? लीना की रूबी से friendship है. So each word indicates each word is going to be a key for the given element. Okay, like Lena tells you that it is lithium and sodium. Key means potassium because key has a symbol K in it, so it is potassium. Ruby से आपको rubidium याद रहेगा. Cesium से आपको cesium याद रहेगा. And friendship से आपको francium याद रहेगा. Okay, let's look at another group. It is group 2 and the charge on group 2 is +2. Okay, what is the mnemonic for that? We have a mnemonic: beta, mange, car, scooter, baap, razi. Okay, so each word will help you in remembering the elements. So beta is beryllium, mange magnesium Mg, car से आपको कैल्शियम याद रहेगा, स्कूटर से आपको स्ट्रॉन्शियम याद रहेगा, बाप से आपको बेरियम याद रहेगा, और राजी से आपको रेडियम याद रहेगा. ओके, similarly we have 4 groups. We have to learn group 1A, group 2A, group 6A and group 7A. So group 6A के लिए देख लेते हैं. Group 6A के लिए we have oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Okay, so what is going to be the mnemonic for this? There's a very simple what is the charge? The charge on group 6A is 2-. What is the mnemonic? Oh, she sails the ports. Okay, so you are going to learn this sentence, and with the help of this sentence you can remember all the elements. So O is oxygen, शी से आपको सल्फर याद रहेगा, सेल से आपको सेलेनियम याद रहेगा, फॉर टेल्यूरियम यू विल रिमेंबर द, एंड पॉट से आपको पोलोनियम याद रहेगा. Okay, so group 6A के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2-. Let's look at group 7A, which is also very very important. And the group 7A has fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. The mnemonic for this, okay, charge on this is 1-. As you all know, what is the mnemonic for this? Floor cleaner broken, I ask. Okay, remember this sentence. So इससे आपको ये पूरा ग्रुप याद रहेगा. So floor से आपको फ्लोरीन याद रहेगा, cleaner से आपको क्लोरीन याद रहेगा, broken से आपको ब्रोमीन याद रहेगा, आयोडीन से आपको आई से आपको आयोडीन याद रहेगा, एंड AS से आपको आस से आपको एसिटीन याद रहेगा. ओके, let's look at example 1. Let's suppose we have a formula AlOH3. आपको एक कंपाउंड दिया AlOH3 and you have to find out कि Al के ऊपर चार्ज कितना होता है, OH के ऊपर चार्ज कितना होता है. ओके, you don't know आपको चार्ज कितना है. तो हमारे पास 2 केसेस हो सकते हैं. एक तो ब्रैकेट वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको सॉल्व करना सबसे आसान है. ओके, रिमेंबर, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, होल ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हुआ है, सो दैट इज़ द ईजिएस्ट फार्मूला दैट यू कैन यूज़ फॉर फाइंडिंग द वैलेंसी. ओके, सो यहाँ पे आपने ग्रुप्स याद नहीं करना है. यहाँ पे आपने Al का, बिकॉज आपको Al का ग्रुप नहीं पता, तो Al के लिए आप क्या करोगे? आप विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लगा हुआ है, यू आर गोइंग टू यूज़ दैट नंबर. ओके, किस तरीके से?
आप सिंपली ये करोगे, पहले तो अपने कंपाउंड को दो आइंस में डिवाइड कर दोगे. पहला जो होता है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सो Al इज़ द पॉजिटिव आइन इन दिस केस. और दूसरा जो आइन निकलेगा इसमें से वो कौन सा होगा? OH. ओके, कितने OH आइंस निकलेंगे? 3, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है? 3. तो 3 OH आइंस हैं इसके अंदर. दैट इज आई राइट 3 over here. ओके, सो Al इज द पॉजिटिव आइन एंड OH इज द नेगेटिव आइन. नाउ सिंपल, यू हैव टू डू व्हाट? यू हैव टू यूज दिस नंबर, ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर लगा हुआ है, एंड यू हैव टू थ्रो इट ऑन द टॉप ऑफ एल्यूमिनियम. ओके, जो आपका पहला आइन है, यू हैव टू थ्रो द नंबर विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट ऑन द टॉप ऑफ दैट. नाउ सिंपली you put 3 on this and plus, because it's a positive ion, so you're going to put positive sign over here. Okay, very simple. What you have to do, first step, you're going to divide this into ions. Al ion अलग हो गया, OH ions 3 OH ions अलग हो गया. Okay, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है that is simply going to the positive ion. So positive ion के ऊपर चार्ज कितना आ गया? 3+. Okay, जो भी नंबर है वो ऊपर जाएगा उसके, और साथ में पॉजिटिव साइन आ जाएगा. ओके, लेट्स डू फॉर OH. OH के लिए हम क्या करेंगे? दिस नंबर इज़ 3. हाउ मैनी OH आइंस आर देयर? 3 OH आइंस. ओके, हम ये वाला नंबर लेंगे एल्यूमिनियम का चार्ज, और उसको इस नंबर से जितने भी OH आइंस हैं उनसे डिवाइड कर देंगे. कैसे? सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू टेक दिस नंबर 3 एंड डिवाइड बाय द चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम. प्लस साइन लिखेंगे, डायरेक्ट सिर्फ नंबर से डिवाइड करेंगे. ओके, सो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? 1. As we know that OH is a negative ion, so OH के ऊपर चार्ज कितना आ गया? ये वाला नंबर 1 लिखा, और नेगेटिव आइन है तो -1. ओके, लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल, इससे और क्लियर हो जाएगा. वी हैव CuNO3 2. अब यहाँ पे आपको दोबारा से ब्रैकेट नज़र आ रहा है. सो रिमेंबर दिस ब्रैकेट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ब्रैकेट से बहुत ईजी हो जाता है ये करना. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्रुप्स अप्लाई नहीं करने हैं, आपको डायरेक्ट ब्रैकेट वाला नंबर जो है ना कहाँ डालना है? ये ब्रैकेट वाला नंबर यू हैव टू पुट ऑन द टॉप ऑफ Cu. सो फर्स्ट डिवाइड CuNO3 2 into its ions. What are going to be the ions? The positive ion is going to be the copper ion. यहाँ से मैंने इसको स्प्लिट किया, कॉपर आयन अलग हो गया, एंड NO3 आयन क्या हो गया? अलग हो गया. अब NO3 आयंस कितने हैं? देर आर 2 NO3 आयंस. ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, दैट मीन्स देर आर 2 NO3 आयंस. ओके, सो मैंने NO3 आयंस के आगे का लिख दिया 2 NO3 आयंस है. सो नेगेटिव आयन कौन सा है? NO3. पॉजिटिव आयन कौन सा है? Cu. अब हमें इनकी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है. सो ये जो नंबर है ब्रैकेट के बाहर, ये कहाँ चला जाएगा? Cu के ऊपर चला जाएगा. ओके, सो सिंपली यू हैव टू डू व्हाट? You have to throw this number on the top of Cu. So Cu will be written as Cu+2. प्लस क्यों लगाया मैंने? बिकॉज पहला आयन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. सो 2 ये वाला आ गया, ये जो ब्रैकेट के बाहर वो 2 था ये Cu के ऊपर आ गया, और साथ में पॉजिटिव चार्ज लगा दिया. NO3 के लिए क्या करेंगे? सेम वही करेंगे जो पहले किया था. हाउ मैनी NO3 आयंस आर देयर? 2 NO3 आयंस आर देयर. डिवाइड बाय द चार्ज ऑफ योर पॉजिटिव आयन. 2 यहाँ पे 2 NO3 हैं, डिवाइड बाय 2. जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो NO3 के ऊपर चार्ज कितना आएगा? 1 आएगा. ओके, सो हमें पता चल गया NO3 के ऊपर चार्ज कितना है? 1. लेकिन 1 व्हाट? 1 माइनस चार्ज है. ओके, बिकॉज NO3 इज अ नेगेटिव आयन, सो द चार्ज इज 1 माइनस. Let's do another example. Example 3. We have MgSO4. Now in this case we don't have any bracket. जब ब्रैकेट नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम ग्रुप्स वाला मेथड अप्लाई करेंगे. हमने ग्रुप्स क्यों याद करें हैं? ग्रुप्स इसलिए याद करें हैं क्योंकि हम ग्रुप्स की हेल्प से भी वैलेंसी निकाल सकते हैं. तो MgSO4 को पहले तो डिवाइड करो 2 आइंस में. Mg इज़ द पॉजिटिव आइन एंड SO4 इज़ द नेगेटिव आइन. ओके, नाउ व्हाट? Mg belongs to which group? Mg belongs to group 2A. You have learned from the mnemonics that I have shared with you that Mg belongs to group 2A. What is the charge on group 2A? The charge on group 2A is +2. Okay, if the charge on Mg is +2, what is going to be the charge on SO4? So simply क्या करेंगे? इसी 2 को, Mg वाले 2 को SO4 के ऊपर ले जाएंगे. ओके, तो ये Mg के ऊपर जो 2+ था ये SO4 के ऊपर आ जाएगा, लेकिन प्लस नहीं आएगा इस बार. इस बार क्या आएगा? नेगेटिव, बिकॉज SO4 कौन सा आयन है? नेगेटिव आयन है. सो हमने SO4 के ऊपर इतना ही चार्ज जितना Mg के ऊपर था उतना ही चार्ज लगाया, और प्लस साइन नहीं लगाया बल्कि हमने नेगेटिव साइन लगाया. बिकॉज योर सेकंड आयन SO4 इज द नेगेटिव आयन. फर्स्ट आयन हमेशा पॉजिटिव होता है, सेकंड आयन हमेशा नेगेटिव होता है. तो हमने सिंपल क्या किया? दोबारा से बताते हैं. MgSO4 को डिवाइड किया Mg में और SO4 में. फर्स्ट आयन इज पॉजिटिव, सेकंड आयन इज नेगेटिव. नाउ वी नो दैट Mg belongs to group 2A. When you know that Mg belongs to group 2A, you know that the charge on this is 2+. Now you throw this 2+ charge, same charge will go on SO4 as well.
ओके, बिकॉज देयर इज़ नो ब्रैकेट, तो हम ये सिंपल ये जितना इसके ऊपर चार्ज है उतना SO4 के ऊपर चार्ज लगाएंगे, बट इट विल बी नेगेटिव बिकॉज SO4 इज़ द नेगेटिव आयन. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट वैलेंसीज विद द हेल्प ऑफ गिवन फार्मूला. हमें जो भी फार्मूला मिलेगा हम उसके हिसाब से अपनी वैलेंसीज निकाल सकते हैं. लेट्स रिव्यू. दो तरीके से फार्मूलाज होते हैं, एक में जिनमें ब्रैकेट लगा हुआ होता है, उनमें जो मेथड होता है वो मैंने आपको दिखा दिया, और दूसरा मेथड जिसमें ब्रैकेट नहीं होता उसमें सिंपल हम क्या करते हैं, हम ग्रुप नंबर की हेल्प से चार्जेस लगा के और उनको बैलेंस कर देते हैं. ओके, लेट्स look at what we have to do. What is our task? Our task is to find out the formulas, the valencies of all the ions in the given formula. हर अलग अलग कंपाउंड को आपने ब्रेक करना है, उसमें जो भी आयन है उसके ऊपर चार्ज या उसकी वैलेंसी फाइंड आउट करनी है. ओके, सो दैट इज़ योर टास्क. यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज विच इज़ गिवन ड्यूरिंग द वीडियो एंड कॉपी डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव told you in the video. Hope the video was quite easy and the lesson was understandable. If you still have any problem, you can ask me in the comment box. Thank you so much.